ओम आनो भद्रा कृतबो यंतु विश्वतः। चारों ओर से हमारे पास कल्याणकारक विचार हैं। मेरे साथियों, आज हम एक बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने के लिए रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर के तुरानंद हॉल में एकत्रित हुए हैं। और इस विषय केवल भाषण का विषय नहीं, बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य का आधार है। नशा मुक्त युवा विकसित भारत। हम सभी जानते हैं जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 ऊर्जावान, आत्मनिर्भरशील, चरित्रवान, निस्वार्थ युवा मिल जाए and I will change the nation. And why did he say this? क्योंकि किस देश की सबसे बड़ी शक्ति कोई प्राकृतिक संपदा नहीं, कुबेर का धन भी नहीं, सामरिक शक्ति भी नहीं, वो है युवा शक्ति, देशभक्त, निस्वार्थ, ऊर्जावान। And we have gathered here just to discuss on a particular matter of great concern, and thanks to Ministry of Youth Affairs and Sports, a short while from now we are going to start a program with the Vedic chanting by revered monks, and we are very happy to have with us Srimad Swami Maheshwarananda Ji Maharaj, who has come all the way from Katihar. He is the secretary of Katihar Ramakrishna Mission, and along with him are Swami Tattasarananda Ji Maharaj and other monks of the institute. And we welcome all of you, and we are very happy to have with us Dr. Shobhut Koli Sen, the former Vice Chancellor of Vishwabharati Shanti Niketan, and welcome to all of you. So the program begins with the Vedic chanting, and that would be followed by the address of welcome by the Secretary Maharaj. So right now we shall stand up for Vedic chanting. Harihi Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Karavabhai Tejashvinabadhitamastu ma vidvishabhai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Mitra Sangvarunaha Sangno Bhavatvaryama Sangno Indro Brihaspatihi Sangno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmashi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishwami Ritang Vadishwami Satyang Vadishwami Tanmamabatu Tadbhaktaramabatu Abatu Mam Abatu Bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Nebhi srinuyama devaha Bhadrang Pashemakshviryajatraha Sthirairangaistushtuvagung Svastanubhihi Ashema Devahitam Yadayo Swastinandro Vriddhasrabaha Swastina Pusha Ishavedaha Swastina Saksho Hariswanevi Swastinho Bhaspatir Dadhatu
Om Shanti 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 Harihi Om Orabhrunimahe Ghatui Yagyaya Ghatui Yagyapataye Devi Shastina Svaha Shastino Aduthiyaha Om Nihasube Shajam Samno Astutipade Samchatuspade Om Shanti 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 Harihi Om Adah Purnamidang Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Avasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Yacha dharmasa sarvadharmasvarupine avatara varisthaya Ramakrishnaya te namaha Agnirudahika shakti Ramakrishne styahiya Sarvavidya sarupantang Saradhang pranamamyaham Namaste Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine. May I now request our Secretary Swami Tattvasaranandaji Maharaj for his address of welcome. ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায়। পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী মহেশ্বরানন্দজি মহারাজ, এই আশ্রমের সকল পূজনীয় এবং শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপিকা সবুজকলি সেন, শক্তিপ্রসাদ মিশ্র সহ এখানে আমাদের সকল সহকর্মী, ছাত্রছাত্রী, ভক্ত অনুরাগী যারা উপস্থিত আছেন, সকলকে আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে ভারত সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে, তার মধ্যে একটি অন্যতম হচ্ছে এই নেশামুক্ত ভারতের কার্যক্রম। আজকে ভারতবর্ষের পরম শ্রদ্ধেয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি ভাষণ দেবেন এবং আমরা অনলাইনে তার সঙ্গে যুক্ত হব। এই যে নতুন ভারতবর্ষের লক্ষ্যে আমাদের যুবকদের, যুবতীদের জীবন গঠন এবং সেই জীবন গঠন কিভাবে তারা করবে তার একটি দিশা দেওয়ার জন্য এই আজকের প্রোগ্রাম। এবং এই যে প্রোগ্রাম, এটি 2 বছর ধরে চলবে। নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, অনুষ্ঠান মানে নানা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে, শুধুমাত্র বক্তৃতা নয়, একটি যেন সুগঠিত জীবন তৈরি হয়, সেই জীবন গঠনের লক্ষ্যে এর মধ্যে সেবামূলক কার্যক্রম রয়েছে, অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম রয়েছে, বৌদ্ধিক কার্যক্রম রয়েছে, এমনকি বাগান করা, গাছ লাগানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সব রকমের জিনিস রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটা যে আমাদের যে যুব শক্তি রয়েছে, সেই যুব শক্তি যেন নেশার ফাঁদে পড়ে দিগ্ভ্রান্ত না হয়, তাদের এই শক্তি যেন একটা গঠনমূলক কাজে চালিত হয়। এইটি হচ্ছে এই কার্যক্রমের লক্ষ্য। নিঃসন্দেহে এই যে সমবেত প্রয়াস, এটি ভগবানের আশীর্বাদে সার্থক হবে। আমরা আসুন আজকে শপথ নিই যে নেশামুক্ত শক্তিশালী একটা ভারতবর্ষ আমরা তৈরি করব।
স্বামীজি 1897 সালে বলেছিলেন, তিনি দেখেছিলেন যে আগামী দিনের যে ভারতবর্ষ, সেই ভারতবর্ষ তার মহিমা, তার গরিমা, তার সমৃদ্ধি, তার বৈভব, এই সব কিছুর বিচারে অতীতের ভারতবর্ষের মহিমা, গরিমা, সমৃদ্ধি, বৈভবকে ম্লান করে দেবে। সত্যিকারের আমাদের যদি দেখার চোখ থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাবো, বুঝতে পারবো যে আজকের ভারতবর্ষ পৃথিবীর যে কোনো শক্তিশালী দেশের সঙ্গে সমানে সমানে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে। আজ থেকে 30-40 বছর আগেকার ভারতবর্ষ আজকে কিন্তু নেই। সুতরাং সেই ভারতবর্ষের আমরা সকলেই হচ্ছে শরিক, সেই শক্তিশালী ভারতবর্ষের আমরা নাগরিক, এবং এই ভারতটাকে গঠন করারও দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের। আমার পুরনো একটা গল্প মনে পড়ছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তার সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বিখ্যাত, তার একটি উপন্যাস, বৃহৎ উপন্যাস আদিম রিপু। সেই আদিম রিপুতে দেখা যাচ্ছে যে কাহিনীতে পরের দিন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবে, আগের দিন 14 তারিখ ব্যোমকেশ একটি চরিত্র, গোয়েন্দা চরিত্র, এবং তার অ্যাসিস্ট্যান্ট অজিত, তাদের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে। অজিত ব্যোমকেশকে জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা ব্যোমকেশ, এই যে আগামীকাল ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে যাচ্ছে, মানুষ আনন্দ করছে, সানাই বাজছে, ড্রাম বাজছে, ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে, আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে, আমরা তো এই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিনি, সুতরাং এই স্বাধীনতা সংগ্রামের আনন্দে যোগদান করার অধিকার আমাদের আছে কিনা? তার উত্তরে ব্যোমকেশ বলছেন যে দেখো, এটা সত্যি যে একটা পতাকা নেড়েও আমরা এই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিনি, কিন্তু এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির যে ফল, সেই সুফল কিন্তু আমরা সকলেই উপভোগ করব। সুতরাং সেই স্বাধীনতাকে সার্থক করে তোলার দায়ও আমাদের সকলের। সেই ব্যোমকেশের বলা কথাগুলো আজকের দিনেও, এই 2026-এ দাঁড়িয়েও সমানভাবে সত্য। আসুন আমরা স্বামীজির সেই স্বপ্নকে সফল করে তুলি, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর এই যে স্বপ্ন, সেটিকে সফল করে তুলি। বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে নেশামুক্ত ভারতের কার্যক্রম, এটি যেন সফল হয়, ভগবানের কাছে এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। নমস্কার। Full thanks and pranams to our revered Secretary Maharaj for highlighting today's great day. As he rightly says, that India is no longer what it was in 1947, a defeated, a colonized, a bruised, even a few years back, a humiliated nation. Now India is among the top 5 nations in the world, but जैसे कि वो हम लोग को सूचित किए, जो आज भारत बहुत आगे है और हमारे सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति, ये हमारे लिए पूंजी है। लेकिन अगर किसी हालत से ये युवा शक्ति बेहद नशे के गिरफ्त में गिर गया, तो दुनिया का कोई शक्ति नहीं है भारत को आगे ले जाए। तो ये केवल युवा नहीं है, हम सभी को, माता पिताओं को बहुत कुछ करना है, इस बारे में वो सूचित किए हैं। And now we shall have guided meditation, and that would be guided by our revered Secretary Maharaj. Swami Vedaswarupanandaji Maharaj. नमश्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। সমবেত সকলকে নমস্কার, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানিয়ে এবং এই বিশেষ দিনের বিশেষ শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা একটু সংক্ষিপ্ত 10 মিনিটের জন্য গাইডেড মেডিটেশন প্র্যাকটিস করব। হোপ অল অফ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি, আদারওয়াইজ ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি, both the languages I will try to present before you. Welcome. আমরা বাংলায় বলছি। প্রথমে আপনারা সবাই মেরুদণ্ড সোজা করে স্ট্রেট বসুন। স্পাইন, হেড and neck should be straight. Then please close your eyes first, and I will chant prolonged Aum, the most holy
mantra of Vedas. 3 times I will chant. After my chanting, you should start all the 3 times. First let me finish, then you will start. When I'll say start, that time. Start. Louder and sweeter, please. And we should think that everything around us is holy, auspicious, atmosphere is there. Everything is holy. My body, mind, everything is pure. There is no irregularity in my mind, body and soul. We should think according to our own faith that Almighty, the Supreme Power, Supreme Self is within us, and that's holy and pure. That purity will purify me. I shall be purified. Whatever impurities are there within me will be vanished from me, not for today, not for this time, forever. চিরকালের জন্যে আমার অন্তরে স্থিত যা কিছু অপবিত্রতা, যা কিছু অশুভ, যা কিছু অশুচি সব অন্তর্হিত হবে। অন্তর্হিত হয়ে আমার মধ্যে শুধু পবিত্রতা, পবিত্রতা আর পবিত্রতাই বিরাজ করবে। আমি পবিত্রতার স্বরূপ। আমার চারদিকে শুধু পবিত্রতাই আছে। পবিত্রতা আমি রেডিয়েট করব, আমি বিকিরণ করব পবিত্রতা। আজ থেকে, এই মুহূর্ত থেকে আমার শরীর, মন, প্রাণ, অন্তরাত্মা, আমার সমস্ত নার্ভাস সিস্টেম সমস্ত যেন পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। আমি পবিত্রতার স্বরূপ। কোন রকম অপবিত্রতা আমাকে স্পর্শ করতে পারে না, আমার কাছেও আসতে পারে না। আমি যেখানে থাকবো, বসবো, দাঁড়াবো, কথা বলবো, চিন্তা করব, মানুষের সংস্রবে আসবো, সকলে আমার সংস্রবে এসেই তারাও পবিত্রতার স্বরূপ হয়ে যাবেন। এই চিন্তা আমরা করতে থাকি। 5 মিনিটের কম সময়, অন্তত 3 মিনিট আপনারা একদম চুপ থেকে নিজেকে সবচেয়ে নিজেই ভালো জানেন, স্থির করুন শরীরকে। শরীর অত্যন্ত স্থূল, সেই স্থূল শরীরটাকে স্থির না করলে অত্যন্ত সাটল, সূক্ষ্মতর সেই মনকে শান্ত করা খুব কঠিন। তাই আগে শরীরটাকে সম্পূর্ণ স্থির করুন, করে মনটাকে শান্ত করে একদম চুপ থেকে 3 মিনিট দেখুন আপনার কেমন উপলব্ধি হয়। 3 মিনিটের মধ্যে আপনি স্বামীজির ভাষায় সেই 3 মিনিট আপনি জাগতিক নন, সম্পূর্ণ পারমার্থিক। ইউ আর ডিভাইন। দ্যাট 3 minutes টাইম। থিঙ্ক, স্টার্ট থিঙ্কিং রাইট নাও।
বলছি, আপনারা এই স্বল্পকালের মধ্যে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে শরীরকে স্থির করলে, অত্যন্ত চঞ্চল মনকে যদি স্থির করা যায় তাহলে একটা অন্য জগতে, বিরাট জগতের অনুসন্ধান পাওয়া যায় ভেতরেই। আমাদের অন্তরেই আছে বিরাট অনন্ত আনন্দ সমুদ্র, তার সন্ধান পাওয়া যায়। এটি শুধু কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে গিয়ে, মেডিটেশনের ক্লাসে গিয়ে, সেখানে গিয়ে অনুশীলন করা নয়। এটি যেন আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবনে, সকালে, সন্ধ্যায়, দুপুরবেলায়, যখন সময় হবে, একটু যদি অফিসে বসেও একটু সময় আমরা নিজেকে সম্পূর্ণ শান্ত স্থির করতে পারি, আমাদের জীবনের একটা বিরাট আনন্দের দরজা খুলে যাবে। যত অশান্তি আসে মানুষের মনের চঞ্চলতা থেকে, সেই সব বিঘ্নের উৎপত্তির কারণেই একজন শান্ত মানুষ মানে তিনি অনেক বেশি কাজ করতে পারেন। এই পবিত্রতা একটা বিরাট জিনিস। স্বামীজি বলছেন এক কথায়, দু একটা বাক্যের মধ্যে স্বামীজির অসাধারণ বাণী মানুষকে সারা পৃথিবীকে উদ্দীপিত করে। ম্যান ইজ দ্য বেস্ট মিরর, দ্য পিওরার দ্য ম্যান, the more clearly he can reflect God. মানুষ যত পবিত্র হবে তত বেশি সে ভগবানকে প্রতিফলিত করতে পারবে। ভগবানকে মানে কি? তার ভেতরের দিব্য ভাবকে, তার দিব্য স্বরূপকে তত বেশি প্রতিফলিত করতে পারবে। ম্যান ইজ দ্য বেস্ট মিরর। মানুষ কি? সর্বশ্রেষ্ঠ দর্পণ। কিসের দর্পণ? তার ডিভিনিটি প্রতিফলিত হওয়ার, দেবত্ব প্রতিফলিত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দর্পণ। মানুষের নিচে কেউ নেই। অ্যামিবা থেকে ব্লু হোয়েল থেকে হিপোপটেমাস কেউ নয়, একমাত্র মানুষের শরীরেই দিব্য ভাব অনুভব করা সম্ভব, এবং সেটা আমাদের নিজেদের দায়িত্বেই করতে হবে। এই দায়িত্ব নিয়ে যদি আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই তাহলে সেটা সম্ভব। স্বামীজি বলছেন পবিত্র হও, পবিত্রতাই ভগবান। শুদ্ধ চিত্ত হও, এটাই সব। পবিত্রতাই ভগবান। আমরা যত পবিত্রতর হব তত আমরাই ভগবান হয়ে যাব। সেইটুকু আমরা চেষ্টা প্রত্যেক দিনের দৈনন্দিন জীবনে, যিনি যে প্রফেশনেই থাকুন, এটা সম্ভব প্র্যাকটিস করা। এই অনুশীলন আমরা যেন প্রাত্যহিক দিনে পালন করি। এটি আজকের দিনে আমরা একটা ব্রত গ্রহণ করি। এই দেশের জন্যে, সমগ্র মাতৃভূমির স্বার্থে, মাতৃভূমির কল্যাণের স্বার্থে, বিশেষত যারা নতুন জেনারেশন তাদের স্বার্থে যখন একটা অনুষ্ঠান গোটা ভারতবর্ষে হচ্ছে, তখন আমরা এই শুভ দিন মনে করে, মাতৃভূমির পুজো মনে করে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, ব্রত গ্রহণ করি। আমরা আজ থেকে এই ধ্যানাভ্যাস, এই অনুশীলন সকলে করব। সকলের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ এবং মঙ্গল এই মহান দিব্যত্রয়ীর কাছে প্রার্থনা করে, দেশ জননীর কাছে প্রার্থনা করে আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠানের দিকে যাচ্ছি। নমস্কার। আপনি চলে যাবেন না, এখানেই বসবেন, বারবার চলে যাবেন। आनंद जी महाराज को प्रणाम। अपनी वाणी से, ध्यान प्रक्रिया से पूरे वातावरण को सौम्यता और शांति से भर दिया। Now may I request Dr. Shobhuj Kolishen to address us. She will speak in English. Radang Deving Ramakrishnang Jagat Gurung Padapadameta Sritva Pranamami Muhurmuhu. Respected Swami Tattvasarananda Ji Maharaj and respected revered monks of Ramakrishna Order, and my dear friends and dear students, today we have gathered here to participate in the nationwide Nashamukh Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhijan organized by the Government of India. It's a privilege and honor to be a part of this important national initiative. I am honored to have the opportunity to share a few thoughts on why a drug-free society is essential for building a healthy, prosperous and developed India. Drug addiction, we all know, is one of the greatest challenges facing modern society. It not only destroys the physical and mental health
of an individual. It also affects families, communities, and the nation as a whole. A drug-free society is therefore essential for building a healthy, productive, and prosperous India. Drug abuse includes the misuse of alcohol, tobacco, narcotic drugs, psychotropic substances, and other addictive chemicals. We have seen in society every day we observe that many young people fall into addiction due to curiosity. What is drug? Let us take a puff. Or peer pressure from friends, or stress, depression, social media influence, or a lack of awareness. Unfortunately, what begins as an experiment often develops into a lifelong addiction. The harmful effects of drug addiction are enormous. It damages our vital organs such as the brain, heart, liver, and lungs. It increases the risk of cancer, mental illness, depression, anxiety, and even suicide. Recently, a very famous film producer and director committed suicide because of his drug addiction. He was suffering from addiction. Addiction weakens self-control, affects our judgments, and reduces a person's ability to study, to work, to think, and overall contribute to society. Drug addiction also destroys families. We have seen that. It leads to financial hardship, domestic violence, broken relationship, neglect of children, and emotional suffering. Many addicts become isolated from their loved ones and lose the trust and respect of the society. Furthermore, drug abuse contributes significantly to crime, drug trafficking, theft, violence, road accidents, and other criminal activities are often linked to substance abuse. A nation cannot achieve sustainable development if its youths are trapped in addiction. Swami Vivekananda once said, "Strength is life, weakness is death." Addiction weakens both the body and the mind. Therefore, choosing drug-free life is a step towards strength, dignity, and self-respect. Recognizing the seriousness of this issue, the Government of India has undertaken several important initiatives to combat drug abuse. One of the most significant programs is the Nasha Mukt Bharat Abhijan. It was launched first in 2020 by the Ministry of Social Justice and Empowerment. The campaign aims to create awareness about the dangers of drug abuse, especially among the students and young people, and to encourage the community's participation in preventing addiction. Under this campaign, awareness programs are organized in schools, colleges, universities, villages, and urban communities. And rallies, workshops, street plays, competitions, posters, seminars, social media campaigns are conducted to educate people about the harmful effects of drugs and the importance of healthy lifestyle. In addition, the government works in collaboration with educational institutions, healthcare professionals, and non-governmental organizations like Ramakrishna Mission, and law enforcement agencies and community leaders to spread awareness and prevent substance abuse. However, in a vast country, large country like India, government's efforts alone are not enough. Every family, every school,
Every teacher, every citizen has an important role to play. Parents should maintain open communication with their children. Teachers should guide students with care and compassion. Friends should encourage one another to make healthy choices and stay away from harmful influences of drugs. Young people should engage in sports, in cultural activities, reading, volunteer work, skill development, and of course meditation. These positive activities build confidence, discipline, and resilience, reducing the likelihood of substance uses. Let us remember that addiction does not offer freedom. It steals freedom. True freedom lies in a healthy body, a clear mind, strong values, and responsible citizenship. As we participate in this Nesha Mukt Abhijan campaign, the inspiring address of our Honorable Prime Minister will guide us towards our shared vision of a drug-free, healthy, and developed India. Let us pledge to remain drug-free, support those persons struggling with addiction, and work together to build a healthier, safer, and stronger India by protecting our youth, our students from the dangers of drugs. We protect the future of our nation. Thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram. What Dr. Sen says is simply too precious to be easily thrown away. In a very short speech, she has highlighted the abuse, especially how does a young man get to drug and what are the remedial measures she has referred to. By the by, we must be all aware that the enemies of India who do not want India to progress, to reach the glory that it earned once, they are very active to get our young men to drug addiction. All of us must be very aware of it. Punjab is already very deeply affected, and not that our state is completely free, but we all must be pretty aware of it. That should be our pledge. In fact, for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Government of India has particularly written what may be called Yuba for the youth, Nasha Mukt Yuba, Jain Jade against addiction. And that is the pledge not only for the youth, but all of us who feel for the youth. So right now, even as it is written in English, Hindi, and in other regional languages, we just read out Bengali version of which all of you will stand up and repeat as I say what is written in the pledge. এতদ দ্বারা প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি কোনো রূপেই বা কোনো উদ্দেশ্যে কোনো ক্ষতিকারক বা মাদক দ্রব্য সেবন করব না এবং অন্যদেরও মাদক দ্রব্য থেকে দূরে থাকতে উৎসাহিত করব। আমি একটি মাদক মুক্ত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে সক্রিয় অবদান রাখার সংকল্প করছি এবং আমার পরিবার, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী এবং আমার সংস্পর্শে আসা
প্রতিটি মানুষকে মাদক সেবনের কুফল সম্পর্কে সচেতন করব। আমি একটি সুস্থ, সচেতন ও ক্ষমতাবান যুবশক্তি গঠনে নিয়োজিত থাকব এবং বিকশিত ভারতের জন্য মাদক দ্রব্য মুক্ত ভারত, নশা মুক্ত যুবর সংকল্প বাস্তবায়নে পূর্ণ অবদান রাখব। আমি সর্বদা জীবনে সুস্থ মূল্যবোধ বজায় রাখব। সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে মাদক মুক্ত জীবন যাপনের বার্তা পৌঁছে দেব এবং একটি সচেতন, ক্ষমতাবান ও মাদক মুক্ত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাব। জয় হিন্দ। May I now request our very special guest Swami Maheshwaranandaji Hindi. नमश्री यतिराजाय विवेकानंद सूरे सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त साधुवृंद और इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त श्रोतावृंद, सबको मेरा प्रणाम। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम उपस्थित हुए हैं, नशा मुक्त भारत, हम लोग जो यहाँ आए हैं, वास्तविकता उनको इस कार्यक्रम की वैसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात है कि मैं थोड़ा इसको ऐसा कह सकता हूँ कि नशा मुक्त भारत अगर हमको करना है तो नशा युक्त भारत करना पड़ेगा। नशा मतलब व्यसन। संस्कृत में सुभाषित है, उसमें कहा हुआ है व्यसन अलग अलग होते हैं तो अच्छे भी व्यसन होते हैं। ठाकुर जी भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि पश्चिम की ओर नहीं जाना है तो पूरब के ऊपर चलते रहना है, पश्चिम अपने आप पीछे पड़ जाता है। नशा कैसे खराब है अभी हमने सुना, दीदी ने बताया, हम लोग जानते हैं समाज में नशा का है। अभी हम लोग जो आए हैं, अभी हमने प्रतिज्ञा की, उसमें एक बड़ा काम की बात हमारे लिए बताई थी कि जो कि हम लोग नशे से अधीन नहीं हैं, लेकिन उसमें कहा है कि आपके आस पड़ोस में, आपके संपर्क में जो लोग आते हैं, उनको हम इस नशे से दूर रहने के लिए मदद करना है। ये कैसे कर सकते हैं? यह नशा होती क्यों है? ज़्यादातर नशा होती है अकेलापन के कारण, समाज में जिनको निगलेक्ट किया जाता है, समाज में लोग दुर्बल घटक है, ये एक नीचे स्तर के। और दूसरे नशा है वो एकदम बड़े अमीर घर के लोग हैं, धनवान लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके परिवारों में वहाँ भी वही स्थिति है। न्यूक्लियर फैमिली हो गया, परिवार में कोई एक दूसरे से बात नहीं करता है। हम लोग सब अपने अपने घर में व्हाट्सएप में या मोबाइल में बात करते हैं, मैसेज भेजते हैं। किसी को पूछा कि अच्छा इस बार 26 जनवरी कौन से दिन आने वाला है, तारीख, तो उत्तर नहीं मिलता है। थोड़ी देर पर चाहे आपने उत्तर नहीं बताए, नहीं आपको व्हाट्सएप किया हूँ, आप भूल जाएंगे इसलिए तो आपको व्हाट्सएप देखना। इतना हम लोगों का रिश्ता बदल गया है। तो ये सब कारण धीरे 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 परिवार में अकेलापन लोग महसूस करते हैं और ये नशे के अधीन हो जाते हैं। और शुरुआत बहुत छोटे से चीज़ से होती है और बाद में इतनी होती है। मैं उस दिन पटना रेलवे स्टेशन में देखा, एक साधारण आदमी है और वो जो हम लोग कुरकुरे वगैरह कुछ खरीदते उसका पाउच है, उसमें वो हवा फूंक रहा है। मेरे समझ में नहीं आया क्या कर रहा है। छोटा बच्चा आके उसको मार रहा है, उसको भी दे रहा है, उसमें भी। फिर मैंने देखा उसने कुछ सोल्यूशन निकाला, उसमें डाला
और उसमें वो नशा कर रहा है। तो मैंने किसी को पूछा, बोले स्वामी जी वो साइकिल का पंक्चर निकालते हैं, उसका वो सोल्यूशन है, उससे नशा होती है, उसमें डालता है और वो करता है आदमी, ये करता है। तो किस तरह पे ये नशा होती है आदमी की और किस कारण? तो नशे का सबसे बड़ा कारण यही है कि अकेलापन उसमें। तो हम लोग भाग्यवान हैं कि हम लोग स्वामी विवेकानंद जी, भगवान श्री रामकृष्ण के विचारों से जुड़े हुए हैं। ठाकुर जी ने हमको जो बताया जैसे कि पूरब के ऊपर दिशा चलना है हमको, तो कैसे करना है कि हमको अच्छे नशा कौन सी होना चाहिए? पढ़ाई की नशा होना चाहिए, ज्ञान की नशा होना चाहिए। अभी मैं इस कार्यक्रम में वैसे उपस्थित रहने वाला नहीं था, लेकिन मन में जिज्ञासा होना चाहिए। मैं वहाँ से कमरे से निकला कि यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है, क्या है, ये जिज्ञासा होना चाहिए, विचार करने की नशा होना चाहिए। खाली बैठे हैं तो क्या करें, तो कुछ अच्छा करें, नहीं तो मोबाइल स्क्रॉल करते रहते। तो मेरे मन में आया कि चलो आज रविवार है, फिर भी घूम के देखेंगे क्या चल रहा है, कहाँ कार्यक्रम है। तो अच्छे व्यसन, अच्छा नशा रहने से हमारा जीवन अच्छा होता है। स्वामी जी के जीवन में हमने देखा है कि स्वामी जी ने पूरा भारत पर्यटन किया, भारत में परिक्रमा की, जहाँ जो जो अच्छा मिलता है मधुमक्खी जैसा उन्होंने लिया। तो ये सब विचार हमको हमारे आसपास आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को ये बताना चाहिए। अभी बहुत जनरेशन के बारे में चल रहा है, युवाओं के बारे में चल रहे हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कि ये जनरेशन ने ऐसा करना चाहिए, ऐसा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन हम जिस उम्र में हैं, मैं जिस उम्र में हूँ या मेरे उम्र के लोग हैं, हमको ये मालूम ही नहीं है कि एक बच्चा पैदाइशी मोबाइल लेके पैदा होता है, इंटरनेट में होता है, तो उसकी सोच कैसी होगी ये हम सोच ही नहीं सकते हैं। हम उसको अच्छा बोलेंगे तो भी हमको गलती से ही बोल रहे हैं, और ठीक गलत बोल रहे हैं वो भी गलत ही बोल रहे हैं, कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि उसकी सोच कैसी बनी होगी, उसके विचार कैसे बने होंगे। मैं कल यहाँ लाइब्रेरी में गया तो मुझको याद आया कि कितने साल बाद मैं इतने बड़े लाइब्रेरी में आया हूँ। लाइब्रेरी, किताब पढ़ना सब चला गया। तो व्यसन अगर मुक्ति करना चाहिए हमको, तो अच्छा व्यसन लोगों को लगाना पड़ेगा, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और स्वामी जी बोले बी एंड मेक, इसलिए हमको खुद को तैयार होना पड़ेगा। स्वामी जी के विचार हम जितने आत्मग्रहण करेंगे, भगवान श्री रामकृष्ण विचार ठाकुर जी बोले हैं कि मूली खाने से मूली का डकार आता है। हम जो पढ़ते हैं, सुनते, वही हमारे मुंह से बात आती है। अभी मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, सुबह से जो क्या हूँ वही मन में आ रहा है मैं कुछ नहीं बोलेगा। तो हम अगर अच्छे विचार नहीं करेंगे तो ये समाज जाने ही वाला है, क्योंकि उसको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। यहाँ से बैठे हुए कोई भी युवा हो, लड़के हो, जो ठाकुर जी से, स्वामी जी से विचार से प्रभावित हैं, उनमें जरूर क्षमता है कि वो लोगों को इस नशा से मुक्त कर सकते हैं। नशा की मुक्ति मतलब अच्छी नशा में उसको ले जाना, अलग दिशा में ले जाना। नशा की मुक्ति के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं, जो साइकेट्रिक, साइकोलॉजी करते हैं, दवाई देते, वो तो है ही, वो तो है। लेकिन शुरू में ये लोग क्यों नशा में जाते हैं? तो इसका कारण ये है कि हम इस बच्चों को, ये समाज को बहुत निगलेक्ट करते हैं, उनके विचारों से मतलब जानना नहीं चाहते, वो कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, उनको अपनापन नहीं दे पाते हैं, और इसलिए ये लोग काम करते हैं। मैं तो बहुत साल आदिवासी क्षेत्र में काम करता था, देखता था कि कैसे गांव में लोगों की क्या क्या समस्या है। तो ये देखता था कि विचार ही नहीं पहुंच रहे वहाँ उनको, जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं कि समाज को मेन स्ट्रीम में लाना है। तो कौन लाएगा, कैसा लाएगा? तो हम लोगों को सबको ये काम करना पड़े। नशा मुक्ति ये किसी एक डॉक्टर का किसी काम नहीं, ये समाज की बीमारी है, व्यक्ति की बीमारी नहीं है, ये पूरे समाज की बीमारी है। और समाज की बीमारी के लिए समाज ही डॉक्टर बनेगा, इंडिविजुअल डॉक्टर से काम नहीं होगा। कितने लोग जाते हैं, नशा केंद्र हैं, बहुत सारे केंद्र हैं, लेकिन वहाँ से लड़के आते हैं, फिर समाज में फंसते हैं। उसकी फीस ज़्यादा है, पैसे बहुत है, ट्रीटमेंट महंगी होती है, बहुत अच्छे बड़े बड़े शहरों में है, लेकिन सरकारी वहाँ व्यवस्था नहीं है। अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले एक वीडियो आया था एक लड़के का, वो दिल्ली का जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, उसके झुग्गी झोपड़ी में वो ले जाते हैं पत्रकारों को, और वहाँ नशा करने वाले लोगों को उन्होंने, कह रहा है बच्चा कि मैंने अभी नशा की हूँ और अपनी बहन की घड़ी चोरी करके किया हूँ। ये वो कह रहा है, टीवी के सामने, कैमरा के सामने कह रहा है, इतना नशा में वो कि कह रहा है। तो अपनी बीवी का घड़ी चोरी करने के, बीवी बोलता बहन की घड़ी चोरी करना, उसको नशा के लिए जरूरत लग रहा है। तो ऐसा क्यों? और हम लोग ये देख के छोड़ देते हैं। तो हमारे घर में बर्तन मांजने के लिए और सामान का, ये घर में काम करने के लिए लोग आते हैं, उनके माध्यम से आपको पता चलेगा। तो कम से कम उनके माध्यम से लोगों को कैसा बचा सकते हैं, ये आपका, मेरा, सबका कर्तव्य है। नशा मुक्ति ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, कोई रामकृष्ण मिशन का कार्यक्रम नहीं है, ये समाज का कार्यक्रम है। एक अफ्रीकन आदमी को जब कुछ सहूलियत दी जा रही थी,
तो लोग टीका कर रहे थे, तो वो कह रहा था कि आप हमको जो सहूलियत दे रहे हैं, ये सहूलियत नहीं दे रहे हैं, आप अपनी सिक्योरिटी खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या कि अगर आदमी को आपने मदद नहीं किया तो वो आदमी ठाकुर स्वामी जी की भाषा में वेगाबॉन्ड बनेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा और वो समाज का शत्रु होगा। आप किसी गरीब को और नशा से मुक्ति करने को मदद कर रहे हैं तो आप अपने को बचा रहे हैं, वही आपके घर में चोरी करने वाला है, वही आपके घर का काम करते करते जो नौकर है वो बर्तन चुराने वाला है, सामान चुराने वाला है, क्योंकि उसको नशा है। तो आप उनको नहीं मदद कर रहे हैं, आप अपने समाज को और अपने को मदद कर रहे हैं। अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो बहुत कठिन है। जिनको ठाकुर जी के और स्वामी जी के विचार मालूम है, उनसे ज़्यादा ये काम अच्छा कोई नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है कि हम लोग अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगहों से एक ही विचार से बंधे हुए हैं, श्री रामकृष्ण के विचार से। तो ठाकुर जी का, माँ और स्वामी जी का जो विचार है, यही उसके ऊपर उपाय हैं इस नशा के लिए। मैं भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग सब सचमुच ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे फौजी बने देश के कि ये नशा मुक्ति के अभियान में सबसे आगे रहे। ये काम हम लोगों का ही है। नमस्कार, महाराज जी को प्रणाम, मुझको यह मौका दिया। नमस्कार। পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম। তার ছোট্ট অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, চিত্তকর্ষক এবং আন্তরিক বক্তব্যের জন্য। একদম শুরুতেই তিনি চমৎকার একটা কথা বললেন যে নেশামুক্ত ভারত গড়তে হলে আরেকটি নেশায় আমাদের রত হতে হবে, সেই নেশাকে আঁকড়ে ধরতে হবে। সেটি কি? জ্ঞান অর্জনের নেশা, আদর্শের নেশা। এবং স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রী শ্রী মা, তারা আমাদের যে আদর্শ রূপে আমরা পেয়েছি, এর চেয়ে বড় আদর্শ আর কি হতে পারে? যদি আমি পশ্চিম দিক ছাড়তে চাই তাহলে পূর্ব দিকে এগোলেই হলো, তাহলে পশ্চিম দিক অটোমেটিক্যালি অনেক দূরে থেকে যাবে এবং সত্যিকারের দেশ গঠন হবে। ভারী চমৎকার কথা বললেন, অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। মহারাজ, আপনাকে বারে বারে আমরা প্রণাম জানাই। এখন আমাদের ছোট্ট ভাই নিবিত আচার্য ভায়োলিন রিসাইটাল আমরা শুনবো এখন। ছোট্ট আওচার।
साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। मैं अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी कि वे हम सब के समक्ष आएं और अभियान के प्रारंभ के अवसर पर आप वर्चुअली हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से आपने विकसित भारत की संकल्पना रखी थी और ये विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 140 करोड़ की जनता को उसके सहयोगी के रूप में देखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक होता है और इसलिए स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है और इसलिए ही स्वस्थ समाज बनाने के लिए देश के युवा भी सशक्त हो, यह आपका आह्वान रहा है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमृत काल में आपने जो मार्गदर्शन करा और आपने कहा कि देश के युवा अमृत काल का सारथी है। अमृत काल में देश के युवा देश के लिए जिए, परंतु देश के युवाओं को अपनी आकांक्षाएं होती है, देश के युवाओं को अपनी अपेक्षाएं होती है, देश के युवाओं के मन में कई आइडियाज होते हैं, देश के युवाओं के मन में सेवा भाव होता है, देश के युवाओं को मार्गदर्शन भी चाहिए, वॉलेंटियरशिप भी चाहिए और उसको मेंटरशिप भी चाहिए। ऐसी स्थिति में युवाओं की अपनी सारी समस्या, अपना विचार, अपनी आकांक्षा और अपनी अपेक्षा को एक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा मार्गदर्शन मिले, उस उद्देश्य के साथ आपने माय भारत की स्थापना करी थी। माय भारत युवा संगठन आज आपके नेतृत्व में 2,26,00,000 युवाओं का संगठन बन चुका है। यही संगठन ने आपके संकल्प को आगे बढ़ाया है। आपने 2020 की 15 अगस्त को दिल्ली के रेड फोर्ट से ये भी कहा था कि मुझे देश को नशा मुक्त बनाना है और आपके देश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए माय भारत युवा संगठन ने ठान लिया और उसके पर काम करना चालू करा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज से 1 साल पहले देश के सभी आध्यात्मिक गुरुओं के जो यूथ विंग्स है उसको साथ में लेके, विविध नशा मुक्ति कार्य के साथ जुड़े हुए लोगों को साथ में लेके 2 दिन के लिए एक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन करा था और ये आध्यात्मिक युवा सम्मेलन में युवाओं ने 2 दिन तक विचार विमर्श करा और ये विचार विमर्श से आने वाले 2 साल का यानी कि 100 वीक का कार्यक्रम का प्लानिंग करा। इस 100 वीक के लिए देश के युवा देश को नशा मुक्त बनाने के लिए आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य योजना तैयार करी और ये कार्य योजना का नाम दिया गया काशी आध्यात्मिक समिति घोषणा पत्र। एक घोषणा पत्र में ये तय करा गया कि हम आने वाले दिनों में कैसे कार्यक्रम चलाएंगे, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे ताकि हम देश को प्रधानमंत्री जी के विचारों के अनुरूप नशा मुक्त भारत में कन्वर्ट कर सके। और इसलिए आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संगठनों के गुरु जैसे माता अमृतानंदमयी मठ से पूजनीय अम्मा जी, आर्ट ऑफ लिविंग से पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, हार्टफुलनेस से श्रद्धेय दाजी जी, बीएपीएस से पूज्य स्वामी ब्रह्म विहारी जी, गायत्री परिवार से पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी तथा ब्रह्म कुमारी जैसे अनेक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के पूजनीय गुरुजन आपके बीच में उपस्थित थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के कार्यक्रम में 26 हमारे राज्य के आदरणीय राज्यपाल उपस्थित है, 11 मुख्यमंत्री जी, 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने आज संकल्प लिया है। 28 यानी कि 28 स्थानों पर
इस कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए करा है और अनेक लोगों ने शायद रजिस्ट्रेशन नहीं करा होगा लेकिन इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके एक आह्वान पर युवा शक्ति का आपके साथ इस जन आंदोलन में खड़ा होना बताता है कि दौर बदलेंगे, कैलेंडर पर तारीखें बदलेगी, लेकिन देश के युवाओं का आप पर मजबूत भरोसा कभी नहीं बदलने वाला है। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रत्येक जन आंदोलन ने यह सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो, संकल्प अटूट हो और फिर उसमें जन भागीदारी की सहभागिता हो, तब संकल्प सिद्धि में परिवर्तित हो जाता है। आप ही के नेतृत्व में इस देश ने स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन में बदलते हुए देखा, ओपन डिफिकेशन फ्री भारत का सपना साकार होते हुए देखा, भारत को नक्सलवाद मुक्त होते हुए भी देखा और फिट इंडिया मूवमेंट से युवाओं को खेल के मैदान में भी देखा है। हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ही हम नशा मुक्त भारत का लक्ष्य भी अवश्य प्राप्त करेंगे। आपके एक आह्वान पर करोड़ों लोग अपना व्यवहार बदलते हैं। आपके एक संकल्प से जन आंदोलन खड़े हो जाते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अभियान भी उसी प्रकार सभी युवाओं का जीवन बदलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी प्रेरणा, सभी पूज्य संतों एवं आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद और करोड़ों युवाओं का संकल्प, इन तीनों का यह संगम भारत के उज्जवल भविष्य का आधार बनने जा रहा है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साधु संत गण का वंदन करता हूं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ऊर्जादायी वक्तव्य ने हम युवाओं का मार्गदर्शन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण और सभी युवा साथी, अब हम एक वीडियो प्रस्तुति देखने जा रहे हैं जिसमें नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के देश भर की कुछ प्रेरणादायी झलकियां संकलित हैं। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, लेकिन जब यही शक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाए तो राष्ट्र निर्माण की गति धीमी हो जाती है। नशा एक ऐसी लत होती है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देती है। हम अपने देश के युवा को जितना ज्यादा बड़े लक्ष्यों से जोड़ेंगे उतना ही वो छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 और नशा मुक्त भारत के निर्माण के विजन के अनुरूप युवाओं को नशे के कुचक्र से बचाने हेतु माय भारत द्वारा शुरू किया गया है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान, जहां काशी से लेकर शिलांग तक युवाओं में जगाई गई नशा मुक्ति की अलख, जिसके अंतर्गत देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के 600 से अधिक यंग लीडर्स ने नशा मुक्त भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए 5 साल का रोड मैप निर्धारित किया। इसी से प्रेरणा लेते हुए 21 सितंबर 2025 को पूरे देश में 2370 से अधिक जगहों पर 60 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए, जहां लाखों युवाओं ने नशा मुक्त और स्वदेशी अपनाने की शपथ ली। माय भारत का ये अभियान पूर्वोत्तर के हर युवा तक पहुंचे। इसके लिए मेघालय की राजधानी शिलांग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में युवाओं की प्रतिभा व ऊर्जा को प्रभावी ढंग से सही दिशा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विकसित भारत के निर्माण के लिए नशा मुक्ति बेहद जरूरी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज किया जा रहा है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ, जहां देश के 1 करोड़ से अधिक युवा नशा मुक्ति के संकल्प के साथ लेंगे हर सप्ताह नए युवाओं को इस अभियान से जोड़ने का संकल्प।
वहीं 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों, 7,000 से अधिक ब्लॉक वाइज माय भारत वॉलंटियर्स, औद्योगिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, हजारों माय भारत यूथ क्लब और एनजीओ द्वारा प्रत्येक रविवार नशा मुक्ति पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पोर्टल पर चल रही कल्चरल गतिविधियों के अंतर्गत लोकगीत, लघु फिल्म एवं रील, चित्रकला, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, कविता, वाद विवाद एवं नारा लेखन जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से लाखों युवाओं को नशे के खिलाफ एकजुट किया जाएगा। विभिन्न कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थाओं में इसी थीम पर माय भारत द्वारा युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं, जहां युवाओं को विकसित भारत के निर्माण हेतु नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया जाएगा। युवा है भारत का कर्णधार, देश की जिम्मेदारी लेने के लिए है तैयार। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ऋग्वेद में कहा गया है यथा दृश्यम तथा बोधा, अर्थात जो बात हृदय को स्पर्श कर ले वही सबसे स्थायी प्रेरणा बनती है। इसी उद्देश्य से शब्दों से आगे बढ़कर आज संदेश अभिनय के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, क्योंकि कभी कभी एक प्रस्तुति वो कार्य कर देती है जो लंबे भाषण भी नहीं कर पाते। आइए उत्साहपूर्ण तालियों के साथ हम स्वागत करें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और माय भारत वॉलंटियर्स का, और उनके इस प्रेरणादायी नुक्कड़ नाटक के साक्षी बने। आओ आओ नाटक देखो, 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 आओ आओ नाटक देखो। चलो चले हम साथ सभी, सपनों से भर जाएं गली। किसी के हाथ में किताबें, किसी के कदम में रोशनी, किसी की आंखों में मैदान, किसी के मन में उड़ान बड़ी। हर चेहरा बोले एक ही बात, हमसे ही बनती सुबह नहीं। कोई डॉक्टर, कोई खिलाड़ी, कोई सैनिक, कोई अधिकारी, एक ही धुन एक ही राह, आगे बढ़ना है बस हमारी। मेहनत ही पहचान हमारी, मेहनत ही पहचान हमारी, यही है भारत की तैयारी, यही है भारत की तैयारी। मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आता, मैं किसी के घर भी नहीं जाता, मैं दरवाजा भी नहीं खटखटाता। लोग मुझे अपने हाथों से बुलाते हैं, पहले मुझे दोस्त कहते हैं, फिर आदत और आखिर में मालिक। ये कहानी है हर उस युवा की जिसने सपने देखे हैं कुछ बनने के, आगे बढ़ने के, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के, लेकिन एक भूल उनके सपनों को चकनाचूर कर देती है, उनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है। राहुल सुनना, रुकना यार। कहाँ आज फिर से लाइब्रेरी? हाँ भाई, एग्जाम सर पर है, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। ओहो, सिर्फ ये ऑफिसर बनेगा और हम सब इसके सिक्योरिटी गार्ड। सुनना, आज रात पार्टी है, चलेगा? चलना। अरे नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता। थोड़ी देर यार, थोड़ी देर। पढ़ाई से बड़ी होती है जिंदगी। एग्जैक्टली। तो एंजॉय कर ले। और सपने देख, सपने देखने की जो मशीन होती है ना, यानी दिमाग, अबे उसको भी तो छुट्टी चाहिए। एक बार चलना यार। अरे मैं नहीं जाऊंगा यार। बस एक बार, 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 बस एक बार। देख, जो सही इंसान होता है वो फैसला खुद करता है। यस, यू कैन डू इट। मैं तो बस मौका देता हूँ। लेकिन तुम हो कौन? नशा, 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 जिसे दुनिया कूल कहती है। कूल, कूल, जिसे कुछ लोग स्टेटस कहते हैं। स्टेटस, स्टेटस, जिसे कुछ लोग आजादी समझते हैं। आजादी, आजादी। और बाद में मैं बन जाता हूँ लत, लत, लत। और सुन,
मैं तो बीड़ी सिगरेट शराब से भी आगे निकल चुका हूँ, गांजा और चरस से भी आगे। मैं तो आजकल सिंथेटिक ड्रग्स के माध्यम से युवाओं को मजे देता हूँ। देख, तुझे पार्टी तक ले आया मैं, तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। राहुल, ना ये वे पकड़, रील बनाएंगे। हाँ, सामने मैं शूट करूंगा। भाई, पूरा स्वैग आना चाहिए। स्वैग आएगा, 1000 लाइक्स आएंगे यार। जोर 1 मिलियन। अरे भाई, मुझे नहीं करना है। अब डरता है। इतना सीरियस मत बन यार, जिंदगी एंजॉय कर। हाँ। अरे सुनना भाई, बस एक कश ले, बाकी हम सब संभाल लेंगे ना। हाँ, भाई नहीं करना मुझे। अरे तू दोस्त है ना मेरा, तुझे दोस्ती की कसम। दोस्ती की कसम है तुझे। ले ट्राई कर। वाह क्या प्रेम है ब्रो। एक कश। याद रखना, जिंदगी को बदलने वाला दूसरा कश कभी नहीं होता। हमेशा पहला कश ही जिंदगी को बदलने वाला, या यूं कहिए कि उसे बर्बाद करने वाला होता। क्यों, कैसा लग रहा है? अजीब, लेकिन अच्छा लग रहा है। वही तो, अब तूने मुझे अपना लिया है तो मैं भी तुझे अपनाता हूँ। जिंदगी तेरी, इच्छा मेरी, सांसें तेरी, रफ्तार मेरी, सपने तेरे, फैसला मेरा। नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता। अब से तू नहीं, केवल मैं चाहूंगा। मतलब? अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। देख, तुझे जो करना है वो कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। धीरे 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 धीरे। अलमारी की चाबी, पैसा। माँ, अलमारी की चाबी कहाँ है? मुझे पैसा चाहिए। माँ कहाँ हो तुम? माँ कहाँ हो तुम? बेटा आ गया तू, चल खाना खा ले। माँ, मैं खाना बाद में खा लूंगा। मुझे अभी ये अलमारी की चाबी दे दो, मुझे पैसा चाहिए। पहले खाना खा ले, फिर बात करेंगे। मैं खाना बाद में खा लूंगा माँ, मुझे पैसा चाहिए माँ, मुझे बस अलमारी की चाबी दे दो अभी। पैसे कहाँ से दूं तुझे? इस महीने घर का किराया देना बाकी है, तेरी बहन की फीस भी बाकी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस पैसा चाहिए अभी के अभी, इसी वक्त। जिस हाथ से तुझे पहली बार खाना खिलाया था, आज उसी हाथ से डर लगने लगा है मुझे। माँ, कल आखिरी तारीख है, मेरी फीस। कोई फीस नहीं, मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए, इसी वक्त। भैया, पहले तो तुम कहते थे कि मेरी बहन डॉक्टर बनेगी, आज मेरी किताबें बोझ हो गई तुम्हारे लिए। जरा सोच, क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर जिनका बेटा नशे का शिकार हो जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ले इसे बेच दे, शायद तुझे इससे ही चैन आ जाए। बेटा याद है तुझे, जब तू बचपन में गिरता था तो कहता था, माँ फूंक मार दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं फूंक मारती थी और तू ठीक हो जाता था। आज कहाँ फूंक मारूं मैं? तेरे शरीर पर, तेरे मन पर, या उस जहर पर जिसने तुझे मुझसे छीन लिया है। देखा, मैंने इसका घर नहीं तोड़ा, मैंने इसकी माँ को नहीं रुलाया, मैंने इसकी बहन की फीस नहीं छीनी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ इसका हाथ पकड़ा था। जो भी किया इसने खुद किया। यही नशे का सबसे बड़ा झूठ है। नशा कभी अकेला नहीं आता, यह अपने साथ लाता है गरीबी, अपराध, बीमारी, हिंसा, टूटते हुए रिश्ते और बिखरते हुए सपने। याद रखना, नशा सबसे पहले हमारी सोच पर हमला करता है, हमारे सपनों पर हमला करता है, और जिसके सपने मर जाते हैं वो जीते जी हार जाता है। माँ कहाँ हो तुम? माँ। हाँ बेटा, मैं यही हूँ। माँ मुझे बचा लो माँ, मैं जीना चाहता हूँ। मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं इसे निकलना चाहता हूँ माँ। हाँ बेटा, मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन तुझे खुद निकलना होगा इस सब से। हाँ बेटा, हाँ हम सब तेरे साथ हैं। तेरी माँ, मैं, हम सब तेरे साथ हैं बेटा, लेकिन तुझे लड़ना पड़ेगा बेटा, तुझे लड़ना पड़ेगा। हाँ बेटा, हम सब तेरे साथ हैं, तो हिम्मत मत हार बेटा। हाँ है अभी आया नहीं, अंधेरा घना है, सवेरा नहीं। जो खुद से लड़े, जो फिर से उठे, जो खुद से लड़े, जो फिर से उठे, जीतता है वही, जीता है वही, जीतता है वही, जीता है वही। कैसा महसूस हो रहा है?
ऐसा लग रहा है जैसे शरीर बहुत जल रहा है, अंदर से कोई कुछ खींच रहा है। बस एक कश दे दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ देर के लिए दर्द कम होगा, फिर दर्द और बड़ा होकर लौटेगा। मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम अकेले नहीं करोगे, हम सब मिलकर करेंगे। याद रखो, नशा अपराध नहीं, बीमारी है, और हर बीमारी का इलाज होता है। यहाँ कोई अपराधी नहीं बैठा, यहाँ जीवन से लड़ने वाले योद्धा बैठे हैं। यहाँ सबने कुछ न कुछ खोया है। मैंने अपना खेल छोड़ दिया, मैंने परिवार खो दिया, मैंने अपनी नौकरी खो दी, और मेरे साथ भी यही हुआ। एक कश जिंदगी तहस नहस, और मैंने खुद को खो दिया। और अब मैं खुद को पाना चाहता हूँ। सोच ले, अभी भी देर नहीं हुई है। एक बार, बस एक बार, एक कश। नहीं, मैं समझ गया हूँ कि पहले एक कश आदमी लेता है, फिर उसके बाद हर कश आदमी की जिंदगी को लेता है। तू जीत नहीं सकता। हाँ, अगर अकेला होता तो, लेकिन समाज, दोस्त, परिवार और सबसे जरूरी चीज इच्छा शक्ति। अगर इच्छा शक्ति है तो तू हारेगा ही, हारेगा ही, हारेगा ही, हारेगा ही, हारेगा ही। हम अपने भीतर के खालीपन को नशे से भरना चाहते हैं। यदि हम उस खालीपन को प्रेम, संवाद, भाषा, संगीत, आशा और उम्मीद से भर दें तो नशे के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। याद रखिएगा, नशे से लौटने वाले व्यक्ति को तानों की नहीं, सहारे की जरूरत होती है। यदि कोई लौटना चाहता है, उसे रास्ता दिखाइए, धक्का मत दीजिए। आज पूरा भारत हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नशे से युद्ध के इस महाअभियान में एक साथ खड़ा है, और साथ खड़े हैं माई भारत के करोड़ों वॉलेंटियर्स, हमारे गुरुजन, अनगिनत आध्यात्मिक, सामाजिक, सरकारी और गैर सरकारी संगठन। तो चलिए, आज हम सभी देश के युवा ये प्रण करते हैं कि हम नशा मुक्त रहकर इस अमृत काल में विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे। याद रखिए, नशा कोई राक्षस नहीं है, ये हमारे समाज की कमजोरियों का चेहरा है। यदि हमने अपने समाज की कमजोरियों को पहचान लिया तो नशा हारेगा जरूर। हाँ, नशा हारेगा जरूर, हारेगा जरूर, हारेगा जरूर, हारेगा जरूर। चलो चले हम साथ सभी, सपनों से भर जाएं गली। किसी के हाथ में किताबें, किसी के कदम में रोशनी, किसी की आंखों में मैदान, किसी के मन में उड़ान बड़ी। हर चेहरा बोले एक ही बात, हमसे ही बनती सुबह नहीं। मेहनत ही पहचान हमारी, मेहनत ही पहचान हमारी, यही है भारत की तैयारी, यही है भारत की तैयारी। ये प्रस्तुति हमें ये संदेश देकर जाती है कि नशे से दूरी ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं आज के इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में। अगली आवाज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आवाज है देश के करोड़ों महत्वाकांक्षी युवाओं के भरोसे की, भारत को विश्व गुरु पटल पर ले जाने वाले उन प्रयासों की, और हर रोज कामयाबी के एक नए मानक को गढ़ते भारत की। मैं अब देश भर के करोड़ों युवाओं के मित्र, पथ परिचालक, भारतीयों के हृदय सम्राट सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने ऊर्जादायी शब्दों से हम युवाओं और खास करके जेनजी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के संग स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। आज हम सभी देशवासी एक महान और महत्वपूर्ण संकल्प के लिए एकजुट हुए हैं। इस संकल्प को लेकर इस कार्यक्रम से जुड़े सभी पूज्य संतजन,
अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी राज्यपाल, सभी मुख्यमंत्री, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण 28,000 से अधिक स्थानों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक मेरे युवा साथी, मैं आज इस शुभ घड़ी पर शुभ संकल्प के लिए करोड़ों करोड़ों नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है, ये राष्ट्र के लिए है। साथियों, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है। साथियों, काशी का सांसद होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि यह अभियान का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिछले साल काशी की पवित्र धरती से शुरू हुआ था। इसलिए वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ साथ इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, संतों के आशीर्वाद भी हैं और महान सांस्कृतिक विरासत भी है। इसमें वो सांस्कृतिक समर्पण भी है जिसने सदियों से नशे को खारिज किया है। यही वजह है देश के 125 करोड़ से अधिक आध्यात्मिक 125 आध्यात्मिक संगठन करोड़ों करोड़ देशवासियों के हित के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामाजिक संगठनों ने, एनजीओज ने इस दिशा में संकल्प लिया है। सबने मिलकर काशी डिक्लेरेशन के जरिए रोडमैप तय किया है और आज हम देख रहे हैं काशी से उठा वो कल्याणकारी विचार अब ये एक नेशनल प्रोजेक्ट बन गया है। आज से देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ हो रहा है। साथियों, कुछ काम ऐसे होते हैं
जो व्यक्तिगत रूप से कोई प्रयास करे तो कभी कभी निराश हो जाता है, थकान महसूस करता है, लंबी दूरी चलने में मन तैयार नहीं होता है। लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है। सामूहिकता की एक ताकत होती है और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है। थोड़ी देर पहले देश के लाखों युवाओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। आपने अपने जीवन को नशे से दूर रखने का संकल्प लिया है। आपने अपने स्कूल, अपने कॉलेज और अपने समाज में नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथियों, आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप्स। साथियों, आज हजारों स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के लाखों विद्यार्थी इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े हैं। माय भारत के वॉलंटियर्स भी लाखों की तादाद में इससे जुड़े हैं। मेरे एनएसएस के नौजवान भी आज हमारे साथ शामिल हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग संस्थानों से, अलग अलग बैकग्राउंड के 1 करोड़ से अधिक युवा आज एक साथ है। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप सब इस बड़े मूवमेंट के लीडर हैं। आपने मेरे इस विश्वास को और मजबूत किया है कि भारत का युवा कितना जागरूक है, कितना समझदार है और अपने कर्तव्यों के प्रति कितना गंभीर है। मैं आप सभी को इस अभियान के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी हैं। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन को भी दिशा देंगे और आप ही 2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे और उसके शिखर पर आप ही बैठे होंगे। उसका सारा रसपान करने का अवसर आप ही को मिलने वाला है। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। इसलिए देश के लिए और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है। नशा फोकस को भटकाता है और धीरे धीरे युवा को उसके अपने सपनों से दूर ले जाता है। अभी जिन नौजवानों ने नाट्य मंचन किया,
बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से नाट्य मंचन में उन्होंने समस्या भी बताई, समस्या के कारण पैदा हुए संकट भी बताए और बाहर निकलने के सामूहिक प्रयत्न का रास्ता भी दिखाया। नाट्य मंचन छोटा था, लेकिन जैसा उन्होंने कहा, आओ हम नाटक देखें, ये नाटक नहीं था, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था, हमें जगा रहा था, हमें जूझने के लिए प्रेरित कर रहा था। साथियों, आजकल हम देखते हैं आज के युवा स्टार्टअप्स की दुनिया में छाए हैं, एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है, एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है, एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है, समाज से भी नफरत का शिकार बन जाता है। नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है, एक बहन की राखी की उम्मीद को कमजोर कर देता है, एक छोटे भाई का आदर्श छीन लेता है। घर के बुजुर्ग हर दिन इस दर्द को जीते हैं कि उनका अपना बच्चा धीरे धीरे खुद को खो रहा है, खुद को गला रहा है, तिल तिल गल रहा है, आंखों के सामने उसे बर्बाद होते देख रहे हैं। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। साथियों, नशा मुक्त रहकर आपको अपने पोटेंशियल को प्रोटेक्ट करना है। आपको ध्यान रखना है, ड्रग्स कुछ समय के लिए हाई देता है, लेकिन आपके कैरियर और फैमिली लाइफ को लो कर देता है। हमें नशे को किसी भी तरह की स्वीकार्यता नहीं देनी है। साथियों, हमारे समाज में भी हमेशा नशे को एक बुराई के रूप में देखा है। हमारे संतों ने, गुरुओं ने हमें इससे बचने के लिए चेताया। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, जितु पीतई मति दूरी होई, बरलू पवई विचि आई, आपना पराइया न पिछाणे, खस बहु धके खाई। अर्थात
जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि और विवेक साथ छोड़ दे, इंसान अपने और पराये की पहचान भूल जाए, ऐसा नशा उसे पतन की ओर ले जाता है। साथियों, हमारी संस्कृति में बचाव के लिए चेतावनी भी दी गई है और नशे की आदत लगने पर उससे निकलने के रास्ते भी बताए गए हैं। समाज का सहयोग, योग और ध्यान की ताकत, ये नशे के खिलाफ हमारे अंतर मन को ताकत देते हैं। और आज तो हमारे पास नशा छोड़ने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी हैं। इसलिए अगर कोई युवा गलती से नशे में फंस भी गया है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं। जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके। आपको भनक आ जाएगी, थोड़ा ध्यान रखिए, पता चलेगा उसमें बदलाव आ रहा है, वो खोया खोया लग रहा है, वो मुंह छिपा रहा है, कमरे में बंद हो जा रहा है, देर रात आ रहा है, पैसे अनाप शनाप मांग रहा है। ये सारी चीजों से पता चल जाता है, भनक आ जाती है, कुछ मामला गड़बड़ है। साथियों, एक आवाहन मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के हमारे प्रोफेसर साथियों से भी करना चाहता हूं। आप भी कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ ड्रग्स के खतरों पर बात करें। नशे के खिलाफ अपने कैंपस में एक मूवमेंट चलाएं। आपके प्रयास बड़े बड़े परिणाम ला सकते हैं। और साथियों, हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो युवा नशे से लड़कर बाहर निकलते हैं वे कमजोर नहीं होते। जो नशे को परास्त करके निकला है ना, वो असली योद्धा होता है। समाज को उनका सम्मान करना चाहिए, अपनापन देना चाहिए, उसे दूसरा अवसर देना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स से जुड़ा किसी का अतीत उसकी पहचान नहीं हो सकता, उसका साहस उसकी पहचान होता है। साथियों, ड्रग्स के खिलाफ अभियान में आज सरकार भी मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी है। देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स भी जब्त की गई है। ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है। मुझे विश्वास है
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर कोई इसे मिशन मोड में करेंगे। मुझे विश्वास है हमारे देश का युवा नशे से मुक्त रहकर अपनी युवा ऊर्जा को न केवल संरक्षित करेगा बल्कि विकसित भारत के संकल्पों को भी आगे बढ़ाएगा। और जब मैं आज अनेक महान संतों को मेरे सामने देख रहा हूं, दूर से मैं मन से उनको प्रणाम करता हूं। मैं इन सभी सामाजिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक गुरुजन, आपका देश के कोने कोने में संगठन है, आपके युवा साथी डिवोटीज हैं। आने वाले 100 दिन में हर एक संगठन एक सप्ताह अपने जिम्मे ले सकता है। पूरा सप्ताह पूरे देश में वो संगठन नेतृत्व करे, बाकी सब शक्तियां उसके साथ जुड़े और रविवार को बहुत बड़ा कार्यक्रम करे। दूसरे सप्ताह दूसरा संगठन, दूसरी शक्ति सप्ताह भर प्रयोग करे, कार्यक्रम करे जगह, और रविवार को बड़ा कार्यक्रम करे। अगर 100 सप्ताह हमारे देश के ऐसे आध्यात्मिक, सामाजिक संगठन, युवा संगठन एक एक सप्ताह अपने जिम्मे ले ले और बाकी सारी शक्तियां जुड़े और रविवार को सब मिलकर के करें, आप कल्पना कर सकते हैं देश में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। मैं एक बार फिर आप सबने समय निकाला, इस पवित्र कार्य में हम सबको आशीर्वाद दिए, इसके लिए संतों का, आचार्यों का, संगठन के महारथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन 1 करोड़ से ज्यादा जुटे नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं माय भारत के वॉलंटियर्स की बधाई करता हूं। वो जो भी ठान लेते हैं आजकल करके दिखाते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे माय भारत के वॉलंटियर्स को मिलने का मौका मिला। वे हिंदुस्तान के सीमावर्ती गांवों में जाकर के एक एक सप्ताह रुक करके आए हैं, जिसे कभी देश का आखिरी गांव कहा जाता था, जिसको आज हम देश का पहला गांव कहते हैं। वहां जाकर के आए, उनके अनुभव बड़े प्रेरक थे और आज इतना बड़ा कार्यक्रम माय भारत के वॉलंटियर्स कर पाते हैं, ये अपने आप में उनकी राष्ट्र के प्रति जागरूक, समर्पित भावना का प्रतीक है। मैं उनकी भी बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सामूहिक प्रयत्नों से ये हमारी मूवमेंट घर घर पहुंचेगी, हर युवा के दिल में पहुंचेगी और ये ड्रग्स के कारोबारियों के लिए बहुत बड़ा खौफ भी बन जाएगी। आइए हम सब मिलकर के आगे चले। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तन से स्वस्थ, मन से स्वस्थ। फिर से बोलिए, तन से स्वस्थ, मन से स्वस्थ। और भी देखिए ना, एक बार, केवल एक बार, उसके बाद क्या होता है? केवल माँ का मुस्कान छीन नहीं लेता, परिवार का मुस्कान छीन लेता, समाज का मुस्कान छीन लेता है। तो आज हम अभी हमारे भाई आचार्य से निवेदन करेंगे, जो जनगण मन अधिनायक, इसी के साथ हमारे कार्यक्रम खत्म होगा। उसके पहले वंदे मातरम, पहले वंदे मातरम, फिर जनगण मन अधिनायक। জনগণ দাঁড়িয়ে করবো, ঠিক আছে? জনগণ দাঁড়িয়ে করছে। জনগণটা দাঁড়িয়ে করবো, বন্দে মাতরম আমরা বসে করছি, ঠিক আছে?
अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।